नमस्कार, मैं मुकेश कुमार झा वीनस रेमेडीज लिमिटेड में मैं हॉस्पिटैलिटी जनरल मैनेजर के तौर पे काम कर रहा हूँ। आई एम हैविंग ऑलमोस्ट 21 years of experience in hospitality. As you know, the word hospitality is itself a very vast. After completing my professional courses, I have worked with the various hotels, maximum as a capacity of food and beverage manager or restaurant manager or banquet manager, wherein I have been taken care of the lots of guests throughout the day, night, evening, in their events, their private functions. After working with the 21 years in hotels, various hotels, I've decided to do something else. And then I got an opportunity, and even I can say myself that I was lucky enough that I've got selected for the Venus Remedies Limited as a general manager of hospitality. When I joined here, it was a totally different task for me. I mean, since I have spent 21 years in a hotel, then I shifted to a corporate company wherein the number of employees were on the higher side. When I was in hotel, I used to take care of the different guests on daily basis. But here, I have almost 500 to 600 guests to whom I am facing each and every day. They are the internal guests though, but I'm facing their complaint, their taste, their requirement, their small requirement, which is not so easy one. Initially, I was thinking that I don't know that I have taken a right decision or wrong decision, but over the period of time since I have joined the organization in 1st of July 2021, and it's been almost 4 months journey with the Venus Remedies Limited, and I am enjoying myself because it's a challenging job that you are facing a same guest on daily basis. As a hospitality manager, my key role, my key performance area was to take care of our Annapurna. Annapurna is a place in all the units where we serve the meal to all our Venusians. We all employee of the Venusians, Venus Remedies Limited, lives like a family, and we call it Venus Rashtra. और हम सब उसके लोग हैं और हम सब एक परिवार की तरह रहते हैं. You must be aware that in a family जहाँ पे 5 लोग रहते हैं, वहाँ पे भी जब खाना बनता है तो लोगों को ये रहता है कि एक बोलते हैं नहीं ये अच्छा था, ये बुरा था. और आप समझ सकते हैं कि मेरी इस फैमिली में 600 लोग डेली खाना खाते हैं और मेरे लिए कितना चैलेंजिंग होगा आप खुद समझ सकते हैं. बट still I am enjoying because it's a totally different from the hotel what I used to do in the past, but what I am doing it right now. जब हम खाने की बात करते हैं, हम अपने अन्नपूर्णा की बात करते हैं, तो ये बहुत ही चैलेंजिंग होता है. और सिंस द स्टार्टिंग द मेन्यू प्लानिंग, हम इस वीनस राष्ट्र में अलग अलग जगह के लोग हैं जो काम कर रहे हैं, मतलब पूरे भारत के अलग अलग कोने से लोग आए हुए हैं. हमें उन सब का टेस्ट, उन सब की प्रेफरेंसेस, उन सब की रिक्वायरमेंट को मैनेज करना होता है, जो कि एक विद इन दी 6 days में पॉसिबल नहीं होता है. फिर भी हम और हमारी टीम हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम किस तरह से अपने मेन्यू को प्लान करें ताकि हम अपने एक से एक स्टाफ, जितने भी हमारे एम्प्लॉय हैं, जितने हमारे वीनस राष्ट्र के सदस्य हैं, उनकी रिक्वायरमेंट को कैसे पूरी कर सकते हैं. और जब हम मेन्यू प्लानिंग करते हैं, मेन्यू प्लानिंग के बाद हमारा काम स्टार्ट होता है. वी स्टार्ट आवर वर्क विद द प्रोक्योरमेंट ऑफ द स्टाफ. जो मटेरियल होता है, बी इट अ ग्रॉसरी और अ वेजिटेबल और द अदर मटेरियल्स लाइक द मसाला और बाकी चीज़ें जो होती हैं, जो कुकिंग ऑयल होता है, कि हम उसको कैसे प्रोक्योरमेंट करते, बेस्ट क्वालिटी इन दी सिटी की जो अवेलेबल होता है, जो मार्केट में है, उससे क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है और किस चीज़ को हम हायर करें. हम कभी इस चीज़ के लिए कंसर्न नहीं होते कि हमारा बजट क्या है. हमारा टारगेट होता है कि बेस्ट फूड, बिकॉज वी नो कि अगर जहाँ पे खाना सही होता है तो वहाँ प्रोडक्टिविटी भी सही होती है. और हम चाहते हैं कि जो हमारे लोग हैं, जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, जो हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन में है, जो इस राष्ट्र के सदस्य हैं, वो इस तरह से अपने परफॉर्मेंस को दें ताकि हमारा दिन रात
जो है डेवलपमेंट हो, और डेवलपमेंट तब होगा जब लोग अच्छे मन से काम करेंगे। सो आवर टारगेट इज टू सर्व द फूड विद द बेस्ट क्वालिटी एट द बेस्ट टेम्परेचर विद द बेस्ट इंग्रेडिएंट्स। तो फर्स्ट वी चूज एंड प्रोक्यूर द मटेरियल करने के बाद उसकी जो डिलीवरी होती है, उसकी जो रख रखाव होती है, हाउ टू कीप इट, हाउ टू प्लेस इट इन ए स्टोर, एंड वी आर यूजिंग सेवरल प्रोसीजर लाइक FIFO, first in first out, what I have learned in the hotels in the past. So I'm using that kinds of experience in this organization to make it more happening. उसके बाद द नेक्स्ट स्टेप कम्स टू द प्रिपरेशन। मैंने मेन्यू प्लानिंग कर ली, प्रोक्योरमेंट कर ली। जो थर्ड स्टेप्स आता है उसका जो कुकिंग का होता है कि उसको कैसे मैनेज कर दें, कैसे हम उसको हेल्दी और न्यूट्रिट बना के रखें, जो हाइजेनिक हो, जो हमारे जो टीम मेंबर हैं वो किस तरह से खाने को बताएं जो पूरी तरह से हाइजेनिक हो और शरीर के लिए फायदेमंद हो। It should be based in a quality at the same time good for the health as well. So we take care of that, and how to serve it in appropriate temperature is also the major part. अगर हम बात करें कि बाकी चीज़ों की कि जो हमारी टीम है, हमारे पास ऑलरेडी जो टीम है काफ़ी बड़ी टीम है। हमारे 2 यूनिट्स में ऑलरेडी हम फूड सर्व कर रहे हैं, और वी हैव अ ह्यूज नंबर ऑफ टीम्स एंड दे आर वेल एक्सपर्ट एंड वेल वेल एजुकेटेड यू कैन से, एंड इवन दे आर ईगर टू लर्न न्यू थिंग्स। they adopt it. When I came from the hotel and enjoying them, so they might initially they might feeling uncomfortable, but when I involved with them, I found कि हर कोई यहाँ नया सीखना चाहता है, करना चाहता है। उनके पास एक जुनून है कि मुझे नहीं ये करना है, बेस्ट करना है और अच्छा करना है, और हम किस तरह से करें, कैसे करें, वो हमें हमेशा पीछे रहते हैं कि हमें सर नया चीज़ करना है, नया सीखना है। एंड दैट मेक्स मी प्राउड मोमेंट एंड फॉर मी कि नहीं, यहाँ पे जो हमारी टीम है वो काफ़ी अच्छी है, एजुकेटेड है और विलिंग टू लर्न वाली चीज़ें हैं। और हम भी कोशिश करते हैं कि वी प्रोवाइड ट्रेनिंग टू देम, चाहे बी इट ऑफिस अटेंडेंट जो हमारे ऑफिस में सर्विस करते हैं, या जो किचन में प्रोडक्शन में है या सर्विस में, हम कोशिश करते हैं कि कैसे हम उनको नई चीज़ सिखाएं ताकि हम अपने डिपार्टमेंट के थ्रू वीनस रेमेडीज लिमिटेड के जो एक प्रोग्रेस चार्ट है जो हमारे रिस्पेक्टेड CMD के सर के द्वारा बनाया गया है, जो हमारा एक विजन है, जो टारगेट है 2025 का, उसको हम कैसे अचीव करें, और हम अपना रोल हाउ टू प्ले हॉस्पिटलिटी डिपार्टमेंट अ रोल टू अचीव दैट थिंग्स। Apart from Annapurna and the office, what the admin block, what I have discussed with you, the another responsibility to the hospitality department is Asiana. Asiana is our guest house, जिसमें हमारे जो लोग बाहर से आते हैं, जो हमारे अलग अलग देश के अलग अलग कोने में काम कर रहे होते हैं लोग, अगर वो उनको किसी काम की वजह से हम बुलाते हैं यहाँ पे, या उनको यहाँ पे हेड ऑफिस में आना होता है, तो उनके लिए हमने एक छोटा सा बढ़िया सा ब्यूटीफुल गेस्ट हाउस बनाया हुआ है, जहाँ पे उनके रहने की, साथ में खाने की और बाकी चीज़ों की हम पूरी देखभाल करते हैं। ये 3 तो मेजर एरिया है जो हॉस्पिटलिटी डिपार्टमेंट करती है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ ग्रोइंग ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन, बीइंग अ पार्ट, हम इसमें पार्ट लेते हैं। लाइक सिंस हमारे काफ़ी सारे ऑडिटर्स होते हैं, बाहर से लोग आते हैं जो हमारे यूनिट को विजिट करते हैं, उनके लिए हॉस्पिटलिटी डिपार्टमेंट पूरी तरह से तैयार होता है उनकी सेवा के लिए, उनकी रिसीविंग के लिए, उनके स्टे, उनके जो रिक्वायरमेंट होती है, और जब विजिट होती है तो हॉस्पिटल डिपार्टमेंट का एक की रोल होता है इन चीज़ को कंप्लीट करने के लिए। हम सारे लोग वीनस राष्ट्र के जितने भी लोग हैं, तन मन धन से हम जुड़े हुए हैं कि हम अपने काम के साथ साथ अपने लाइफ को भी बैलेंस करना है, अपनी हैप्पीनेस को भी रखना है, और हम किस तरह से सेलिब्रेट करें। और उस सेलिब्रेशन के जरिए बेसिकली क्या होता है कि हम आपस में जुड़ते हैं। काम तो डेली होता रहता है, इट्स ऑन अ डेली रूटीन, बट ड्यू टू दिस स्पेसिफिक एंड ये छोटे छोटे जो इवेंट्स होते हैं उसके वजह से हम आपस में जुड़ते हैं और हमारे अंदर एक प्यार बैठता है, और डेफिनेटली इट विल help us in the form of grow of our organization as well. मैं तो यही कहना चाहूँगा, I wanted to say that
joining Venus Remedies Limited was a very great decision for me, and I am really enjoying it. And I will tell to you that whenever, if you will get a chance to join the Venus Remedies Limited, you must apply for that. It's one of the wonderful organization in India, you must say, and if you will get a chance, you must join it. Thank you. Jai Venus.